వధువుగానే మారిపోవే ఈ క్షణం స్వయంవరం ఇవాళ సంవరం. Thank you so much for coming back to this video. Hi everyone, my name is Ishan Jain. I am a freelance prototyper and this is a robot that I've been making recently for a couple of months. Recently गलत word है उसके लिए. And my condolences to all the lives lost in the Kashmir Pahalgam incident. I highly condemn this act and terrorism should not be supported or promoted by any country irrespective of कि तुम religion क्या है I don't give a fuck about that, but this is an act that everyone should condemn. Okay, talking about that, Operation Sindoor was a highly successful operation. I'm an Indian, मैं गर्व से कहूँगा कि हम उन सब के साथ हैं जिन लोगों ने अपनी वैल्यूएबल लाइफ्स पहलगाम इंसिडेंट में खोई थी. एंड टू ऑल द मार्टियर्स एज वेल, वी आर विद यू. माय होल यूट्यूब कम्युनिटी इज विद यू. पीस आउट. You know what? We have a sponsor, guys. Let's appreciate the sponsor. I would like to take a moment and thank JLC MC for sponsoring this video. यार, आप जैसे लोग अगर हम स्मॉल क्रिएटर्स को स्पॉन्सर नहीं करोगे तो मैं आपकी तारीफ कैसे करूँगा? Are you also looking for a reliable automation component solution? I got you covered. Introducing JLC MC, your one-stop solution, your one-stop shop for mechanical and automation components. From gears and bearings to linear actuators and couplings, JLC MC offers a vast collection of components. Their integrated production line ensures top-notch quality and competitive pricing, making them a trusted choice in the industry. And here's the best part. New users receive a $70 coupon upon registration. Just visit their homepage to claim this limited time offer. Ready to elevate your projects? Click the link in the description to explore JLC MC's offering and take advantage of the $70 welcome bonus. Yeah, don't forget to click the link in the description. JLC MC, affordable quality you can trust in industrial automation and manufacturing. ये हो गई स्पॉन्सर की तारीफ. ये मैंने पढ़ ली स्क्रिप्ट. For everyone who's watching this video, मैं इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ एक्सप्लेन करूंगा. बाय द वे, दिस वीडियो वॉज मेड इन मल्टीपल पार्ट्स. काफ़ी दिन लगे थे इस वीडियो को बनाने में. सो सब्सक्राइब करना मत भूलना. एंजॉय द वीडियो. कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा. इफ़ यू हैव एनी सजेशंस कि मैं अथेना के साथ और क्या क्या कर सकता हूँ, प्लीज़ टू ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन. इस वीडियो को शेयर कर दो, तुम्हारा भाई खुश हो जाएगा. जय हिंद, जय भारत. बात करते हैं एथेना के फीचर्स की. सबसे पहला फीचर, एथेना इज अ रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल. इट्स वेरी लाइट वेट एंड हाई टॉर्क. एथेना का वेट सिर्फ 1.6 किलोग्राम्स है. तुम सोचो, इतना बड़ा बल्कि सा रोबोट, उसका वजन सिर्फ 1.6 किलोग्राम्स है और वो पागल जैसे भागता है विद हाई टॉर्क. तुम उसको कहीं भी चढ़ा दो, चढ़ जाएगा. इट्स एन ऑफ रोडर. इट हैज ट्रैक बेल्ट्स ऑन इट यार, तो उसको कहीं भी चला दो. एथेना इज अ बीस्ट. एथेना हैज अ 500 मीटर विजिबल रेंज, वर्क्स विद नो वाईफाई, नो ब्लूटूथ, ओनली रेडियो वेव्स. शेफ्स किस. Imagine what Athena has a fail-safe option. यानी कि Athena में डुअल ब्रेन है. अगर एक ब्रेन काम करना बंद कर दिया, दूसरा उसको रिप्लेस कर देगा ऑन द स्पॉट ऑटोमेटिकली. दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट पॉइंट. Athena has dual mode configuration. That means Athena में ऑटोनोमस मोड भी है, which is very smart and intelligent. वो खुद से फिगर आउट करता है Athena के ऊपर क्या क्या करना है. AI नहीं बोलूँगा मैं उसको यार. It's a smart robot. Talking about the elephant in the room, Athena has a robotic arm. This is a 3-axis robotic arm which has servos, a DIY homemade gripper from scratch. This whole robot is made from scratch. आप अगर मेरी जर्नी फॉलो कर रहे थे तो you will be very much familiar with what I'm doing for the past couple of months, क्योंकि काफ़ी वीडियोस डाले मैंने Athena कि मैंने उसको कैसे बनाया है and everything stuff. So आप आई बटन क्लिक करके प्लेलिस्ट चेक कीजिए ज़रूर. अभी के लिए लेट्स कंटिन्यू द फीचर्स. वी हैव अ 3-axis रोबोटिक आर्म, अपर वाई, लोअर वाई एंड अ Z axis. X axis नहीं है क्योंकि रोबोट खुद ही घूमेगा. दैट्स व्हाई वी हैव नो X axis बट अ Z axis इंस्टेड, व्हिच इज इवन बेटर. रोबोटिक आर्म हैज अ वेरी प्रिसाइज कंट्रोल एंड कैन बी कस्टमाइज्ड अकॉर्डिंग टू द यूजर. अगर आप Athena यूज कर रहे हैं तो यू हैव द ऑप्शन कि आप उसके अंदर पॉट से, पोटेंशियोमीटर से आप एडजस्ट कर सकते हैं आपको रोबोटिक आर्म का कस्टमाइजेशन, सेंसिटिविटी, इवन अ सिंगल टच विद जॉयस्टिक एंड पोटेंशियोमीटर्स मैंने बनाया है. Athena is super power efficient. 8 घंटे का बैटरी बैकअप ऑन अ सिंगल चार्ज, कंटिन्यूस 3S कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बैटरीज है. 3.7 वोल्ट ईच, लिथियम आयन सेल, 2500 मिली एम्पियर, स्ट्रेट करंट, पीक करंट. सेक्सी रोबोट, तुम जो करवाना चाहो करा लो, बिकॉज Athena इज अ बीस्ट. Athena पावर एफिशिएंट क्यों है? क्योंकि उसमें है स्लीप मोड. स्लीप मोड यानी आप एक
स्विच से टॉगल एथेना इज ऑन स्लीप मोड, यानी कि आप इसको 8 से 16 दिन तक सेम वोल्टेज विदाउट वोल्टेज ड्रॉप के चला सकते हैं। एथेना इज दैट एफिशिएंट, एथेना इज सो अमेजिंग कि तुम बस एक क्लिक करो, एथेना स्लीप मोड में चला जाएगा। अगर तुम उसको 16 दिन बाद उठाओगे तो भी वोल्टेज ड्रॉप एक सर्टन परसेंटेज का ही रहेगा, विच इज 0.5 प्लस माइनस परसेंटेज, ये पकड़ के चलो। दैट मीन्स अगर आज पहला दिन है, मैंने एथेना को स्लीप मोड में डाल दिया, तो 10वें दिन एथेना उठेगा विद 11.8 volt battery, which is pretty good. That's how it works. Athena is pretty energy efficient. Efficiency की बात हो ही रही है, so why not talk about regeneration? जो लोग EVs यूज करते हैं उनको पता होगा कि तुम EV के अंदर ब्रेक लगाते हो तो उसमें रीजन नाम का एक फीचर होता है। अब एथेना में होता क्या है, एट अ टाइम 2 ही व्हील चलता है। इट्स अ 2WD व्हीकल, 4WD नहीं है। उसमें ट्रैक बेल्ट है, बोल के 4WD का काम हो रहा है, बट एथेना इज अ 2WD, 2 व्हील ड्राइव, यानी एट अ टाइम उसके या तो आगे के 2 चलेंगे या तो पीछे के 2 चलेंगे, इतना सिंपल। अब एट अ टाइम 2 यूज हो रहे हैं तो बाकी 2 खाली है, तो मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। डीसी मोटर इस काम में बहुत अच्छा है, मैंने यूज करे गियर्ड मोटर्स, तो वो क्या करते हैं, जब भी 2 मोटर जो खाली चल रहे हैं वो बैटरी को साइमल्टेनियस चार्ज करते रहते हैं, जिससे आपका जो 8 आवर्स ऑफ बैटरी बैकअप है वो और बढ़ जाता है। दैट्स सो सिंपल एंड पावर एफिशिएंट, दैट्स एथेना फॉर यू। लेट अस अज्यूम विद एन एग्जांपल, आपके पास एक सिचुएशन है जहाँ पे ह्यूमंस का जाना बहुत रिस्की है और रिस्क देयर लाइफ, या फिर पॉसिबल ही नहीं है। गेटिंग वॉर लाइक सिचुएशन है, या फिर आपको एमिनेशन डिप्लॉय करना है, या फिर आपको माइंस डिफ्यूज करने हैं, आपको बॉम्ब्स डिफ्यूज करना है, आपको रेडियो एक्टिव जोन में जाना है। उसके लिए कोई भी इंसान का जाना या फिर ह्यूमन बीइंग टू गो ओवर देयर इज अ बिट रिस्की। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक रोबोट भेज सकते हैं। वो रोबोट कौन होगा, वो एथेना होगा। देखो यार, एथेना के अंदर ना बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है कि तुम इन फ्यूचर के साथ क्या क्या ऐड कर सकते हो, उनकी बात करते हैं। सबसे पहली बात तो यार, जो मेरा कैमरा उड़ा दिया था, जिनको नहीं पता है उनके लिए बता रहा हूँ। आई रिसेंटली फ्राइड माई कैमरा, गलती से उसको ज़्यादा वोल्टेज चला गया था तो वो उड़ गया, ठीक है। तो उसको सोफिस्टिकेटेड तरीके से हम फ्राई होना बोलते हैं। सो आई रिसेंटली फ्राइड माई कैमरा, तो वो तो ख़राब हो गया। सो इट वॉज अ बेबी मॉनिटर का रिवर्स इंजीनियर्ड प्रोडक्ट बोल सकते हो आप उसको, बिकॉज आई ओपन द बेबी मॉनिटर एंड आई रिवर्स इंजीनियर इट, और उसको मैंने एथेना के लायक बना दिया था पूरा खोल खाल के एकदम प्रॉपरली। और उसको बाद में अपग्रेड किया था कि वो सिर्फ रेडियो वेव्स पे चले। दैट मीन्स 2.4 गीगाहर्ट्ज के बैंड पे चलता था, बहुत सही कैमरा था, बट वो फ्राई हो गया। तो उससे हम करेंगे ब्रेकअप जैसे मूव ऑन। सो इन फ्यूचर मेरे दिमाग में ये है कि मैं ESP82 का कैमरा ऐड करूँगा, उसके अंदर CV इम्प्लीमेंट करेंगे, विच इज़ कॉल्ड कंप्यूटर विजन यूजिंग पाइथन। यार ये बहुत सही चीज़ होती है, इसके थ्रू तुम मोशन डिटेक्शन लगा दो या फिर मोशन रिकग्निशन लगा दो, भाई तहलका बन जाएगा इतना, तहलका क्या माल लगेगा ये। फिर उसके बाद आता है लाइडार। अब लाइडार जिसको नहीं पता उनको बता रहा हूँ, लाइडार इज बेसिकली बहुत ज़्यादा सेक्सी टेक्नोलॉजी, बिकॉज तुम्हारे घर में जो ऑटोमेटिक या रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं ना, वो लाइडार यूज़ करते हैं। वो एक इमेजिंग क्रिएट करते हैं पूरे घर का मैप जैसा, एंड दे यूज इट टू अवॉइड ऑब्स्टिकल्स। तो लाइडार यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मेरा रोबोट अल्ट्रासोनिक यूज़ कर रहा है, अल्ट्रासोनिक वेव्स। इंस्टेड ऑफ दैट आई एम थिंकिंग कि यार लाइडार वुड बी अ बेटर ऑप्शन, उसको ज़्यादा फंक्शनैलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी देगा घूमने की, इंस्टेड ऑफ जस्ट ऑब्स्टिकल आएगा तो साइड हो जाएगा। नहीं यार, लाइडार वुड बी अ बेटर थिंग। डेफिनेटली इसको अपग्रेड करेंगे यार आगे जाके, जैसे जैसे मैं सीख रहा हूँ वैसे वैसे मैं इंप्लीमेंट भी कर रहा हूँ। अब हम धीरे धीरे एक एक प्रोस्पेक्ट को एक्सप्लोर करेंगे। दैट मीन्स कि अब देखते हैं बेस कैसा चल रहा है। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी प्रोस्पेक्ट, मैंने कंपोनेंट्स क्या क्या यूज़ किए और फ्लो कैसा चल रहा है, ठीक है। सो विल गो बॉटम टू टॉप। पहले हम बेस की बात करेंगे, देन उसके बाद हम रोबोटिक आर्म की बात करेंगे। सिंपल एज दैट। विल एक्सप्लोर ऑल दी फीचर्स। अब मैंने जो भी जितने भी फीचर्स बताए, विल एक्सप्लोर कि वो काम कैसे कर रहे हैं या फिर मैंने उनको इम्प्लीमेंट कैसे किया, एंड व्हाट आर दी चैलेंजेस आई फेस्ड इन देम। बेस में जो मोटर्स यूज हुई है, दे आर एज फॉलोज: 2 150 RPM मोटर्स एंड 2 500 RPM मोटर, विच इज अ किलर कॉम्बिनेशन फॉर स्पीड एंड टॉर्क। यानी तुम इसको एक डायगनल में लगा दो या फिर आगे पीछे लगा दो, पैरेलल में साथ में नहीं लगाना कभी भी, नहीं तो तुम्हारा रोबोट बस चक्कर काटता रहेगा, चलेगा नहीं। तो या तो ऑपोजिट्स में या तो डायगनल में। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, तुम्हारा रोबोट पागलों की तरह भागेगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस वन। दिस इज अ किलर कॉम्बिनेशन ऑफ मोटर्स फॉर द रोबोट विद अ मेटल चेसेस। अब चेसेस मेरी काफ़ी हैवी है, बिकॉज अब रोबोट भी इतना सेक्सी बन रहा है, तो क्यों ना चेसेस भी अच्छी लगाया जाए। सो आई यूज्ड अ मेटल ब्लैक चेसेस। कंडक्ट नहीं करता, बहुत अच्छा चेसेस है। उसको मैंने कट कर दिया है थोड़ा सा, इफ यू कैन सी प्रॉपरली। उसके ऊपर फिर मैंने रोबोटिक आर्म माउंट किया है, ठीक है। रोबोट है ऑफ रोडर, तो उसमें मैंने लगाया ट्रैक्स और व्हील्स। बेसिक सेंस है, तो मैं फिर भी नहीं समझ रहा, तो अभी मैंने मेंशन कर दिया, सब्सक्राइब कर देना। अब रोबोट को चलाने के लिए हमें ड्राइवर्स चाहिए होते हैं। अब मोटर को तुम डायरेक्टली माइक्रो कंट्रोलर में नहीं डालोगे,
ठीक है ना, मैंने आर्डिनो यूज किया इसके अंदर, 2 सेपरेट ब्रेन्स है, तो मैंने डायरेक्ट मोटर्स को आर्डिनो से कनेक्ट नहीं किया। यू नीड अ मोटर ड्राइवर। तो इस रोबोट के अंदर 2 मोटर ड्राइवर है, बोथ ऑफ देम आर L29A10 बेस्ड मोटर ड्राइवर्स। L29A10 एक मोटर ड्राइवर आईसी है जो बहुत सेक्सी है, जो पीक करंट 30 एम्पीयर तक का झेल लेती है। मैंने अभी लास्ट सेक्शन में मेंशन किया कि रोबोट इज सुपर पावर एफिशिएंट। उसको प्रूव करने के लिए आई हैव वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन यानी आप एक वोल्टेज को रेगुलेट कर रहे हो टू अ सर्टेन एक्सटेंट, यानी कि मुझे यहाँ से आलू डालना है, यहाँ से सोना निकालना है, दैट इज वोल्टेज रेगुलेशन। यहाँ से 12 वोल्ट डालूंगा, यहाँ से 9 वोल्ट निकालूंगा, दैट इज वोल्टेज रेगुलेशन। इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए वी नीड आईसीज। वी हैव 7809, 7805 आईसीज डिलीवरिंग अस 9 and 5 वोल्ट्स रिस्पेक्टिवली। ओके, मैं बता देता हूँ जिनको नहीं समझा। 7809 बेसिकली क्या करता है, तुम यहाँ से 12 वोल्ट दो, यहाँ से तुम 9 वोल्ट ले लो। सेम गोज फॉर 7805। जो एंड में नंबर है ना 0905, दैट डिनोट्स कि तुम्हें आउटपुट में कितना करंट मिलेगा। इट्स अ 3 पिन आईसी जिसका बीच वाला ग्राउंड होता है, पहला पिन इनपुट होता है, थर्ड पिन आउटपुट होता है। क्रेजी एज फक, बहुत अच्छी चीज है। वोल्टेज रेगुलेटर मेरी फेवरेट है, पता है क्यों? क्योंकि तुम उसके साथ एक कैपेसिटर लगा दो ना भाई, जो तो तहलका मचाता है वो। 7809 मैंने इसलिए यूज किया ताकि जो मेरा रोबोटिक आर्म है वो थोड़ा सा ज़्यादा वेट उठा सके। हाँ, अगर तुम थोड़ा वोल्टेज और करंट बढ़ा दोगे तो तुम्हारी मोटर्स थोड़ी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है। ऑब्वियसली करंट खींचती है, पावर खींचती है, बट दे आर मोर एफिशिएंट एंड मोर, आई शुड से, ज़्यादा काम करती है दैन इट इज सपोज टू डू। तो जलने का थोड़ा रिस्क होता है, बट अगर थोड़ा थोड़ा ले लो स्टेरॉइड जैसा तो सही है, तुम्हारा बॉडी बन जाएगा ऐसे। अब ये जो आईसीज होती है दे टेक अप लॉट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो जब आप किसी चीज को बड़े से छोटा कर रहे हो, अज्यूम कर लो मैं एक बहुत बड़ा सा पेड़ काट रहा हूँ और उसको छोटी सी पेंसिल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, कितना सारा स्ट्रेस जाएगा, कितना सारा मैन पावर जाएगा, कितनी एनर्जी जाएगी, कितनी सारी मशीनरी जाएगी, राइट? सेम वे इलेक्ट्रिकल करंट भी ऐसे ही काम करता है एंड सेम सो डज द वोल्टेज। तो अगर आप 12 वोल्ट को 9 में कन्वर्ट कर रहे हो तो वहाँ पे ना एनर्जी का लॉस होता है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो आपको हीट डिसिपेट करनी होती है। अब एक आईसी काफी हीट जनरेट करती है। इतना बड़ा वोल्टेज आप ड्रॉप कर रहे हो फ्रॉम 12 वोल्ट टू 9 वोल्ट इज अ बिग डील, ठीक है? सेम वे 12 वोल्ट टू 5 वोल्ट इज ऑल्सो बिग डील, क्योंकि वो काफी ज्यादा हीट डिसिपेट करता है। तो एट दैट मोमेंट मैंने यहाँ कूलिंग का इंतजाम किया है। सो आई हैव यूज्ड थर्मल पेस्ट कॉम्बोड विद हीट सिंक्स। और गलती से हो सकता है कि कभी ज्यादा हीट हो गया, ज्यादा देर चल गया, रोबोट एक्चुअल में 8 घंटा चल गया। And by the way, the claims that I have made, I have tested each and everything. That's why this video is coming so late. 1 महीने बाद आ रहा है ये वीडियो, जब पूरी सीरीज खत्म हो गई। दिस इज द फाइनल वीडियो ऑफ द सीरीज। अब मैं एक्चुअल में एथेना का सब कुछ रिवील करूंगा, कैसे बनाया, क्या किया। एंड गुड न्यूज फॉर यू ऑल, कोड एंड सर्किट डायग्राम इज इन द डिस्क्रिप्शन। अगर ये वीडियो काफी अच्छा आता है, आई विल मेक अ ट्यूटोरियल ऑन एथेना। ट्यूटोरियल ऑब्वियसली बड़ा रहेगा, बट इट्स गोना बी अमेजिंग एंड किलर बिकॉज इट्स कमिंग फ्रॉम मी, तुम्हारा भाई, किसी का भाई किसी की जान। कूलिंग सिस्टम के लिए बाय द वे देयर इज आल्सो अ फैन व्हिच सक्स 12 वोल्ट आउट ऑफ माय फकिंग बैटरीज। अब हम बात करेंगे रोबोटिक आर्म की। टॉकिंग अबाउट द एलिफेंट इन द रूम, यार रोबोटिक आर्म क्या चीज है यार। रोबोटिक आर्म इज फकिंग अमेजिंग। रोबोटिक आर्म हैज 3 एक्सेस। Z एक्सेस रोबोट घूमता है, अपर वाई एंड लोअर वाई, दैट मीन्स नीचे का भी एक ऐसा है, उसके ऊपर एक जॉइंट है जो ऐसा ऐसा करता रहता है, दैट्स बेसिकली लोअर वाई एंड अपर वाई। उसको मैंने ऐसा बोला है, प्लीज करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन इफ आई एम रॉन्ग। ज्ञान मत चूदना भाई। दूसरी बात, अब रोबोटिक आर्म के जो लोअर वाई एक्सेस है वहाँ पे लगाई है मैंने ब्लैक सर्वो विच इज MG995 टावर प्रो मेटल गियर सर्वो। ये बहुत अच्छी होती है और यही प्लान है जो मेरा 9 वोल्ट चूसता है वोल्टेज रेगुलेशन में से, और करंट भी काफी चूसता है। तो अगर इसको बाई चांस करंट कम पड़ जाता है ये तो लटक जाता है। So that's why a good current and a good voltage outcomes is a good and high torque servo. अब सर्वो की जगह यहाँ पे मैं स्टेपर भी लगा सकता था, बट ये छोटा है, छोटा मॉडल है, छोटा प्रोटोटाइप है, तो सर्वोज आर गुड। इफ यू वांट टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल तो आप इसमें स्टेपर डालिए। स्टेपर इज द बेस्ट फॉर दिस काइंड ऑफ स्टफ, स्पेशली रोबोटिक आर्म्स की जब बात आती है। और आप इसको अगर थोड़ा स्केल करते हो या साइज बढ़ा देते हो तो यू कैन इवन गो विद टाइमिंग बेल्ट्स एंड स्टफ। बहुत अच्छा चलता है यार, मैं क्या बताऊँ, मतलब वर्क्स लाइक अ चार्म। अब आगे आते हैं। अब रोबोटिक आर्म का जो अपर वाई एक्सेस है दैट इज सपोर्टेड बाय MG90 टावर प्रो ब्लू प्लास्टिक सर्वो, ठीक है? इसका टॉर्क ज़्यादा नहीं होता बट इट डज द जॉब बिकॉज इसको आगे ज़्यादा वेट हैंडल नहीं करना है। मेजॉरिटी का जो काम कर रही है वो मेरी लोअर वाई एक्सेस की सर्वो कर रही है, इसलिए उसको काफ़ी अच्छे से मैंने इंटीग्रेट किया और बहुत स्ट्रेटेजिकली प्लेस किया। अब तुम देखोगे ना पूरे रोबोट को कि वो प्लास्टिक से बना है, सनबोर्ड से बना है, उसमें तुम कुछ भी फैंसी 3D प्रिंटेड पार्ट्स नहीं देखोगे। पहली बात तो मेरा 3D प्रिंटर लेना है मेरे को। So sponsors, if you are listening, थोड़ा sponsor कर दो। We have a sponsor guys. This video is sponsored by GLC MC and
स्पॉन्सरशिप मिल गई भाई। अब रोबोटिक आर्म के ग्रिपर के बारे में बात करेंगे। रोबोटिक आर्म का जो ग्रिपर है इट्स सुपर अमेजिंग। क्यों? देखो, तुम्हें रोबोटिक आर्म के अंदर सिर्फ ग्रिपर की ही नहीं, रोबोटिक आर्म मैंने फीचर्स के अंदर मेंशन किया था कि कस्टमाइजेबल है। कैसे? दिस राइट हियर इज द रिमोट। अब इसके ऊपर जो पॉट्स है ना, आप इससे डिफॉल्ट पोजीशन सेट कर सकते हो रोबोट की। जो रोबोटिक आर्म है, अगर आपको आर्म स्टार्टिंग डिफॉल्ट पोजीशन ये चाहिए, इंस्टेड ऑफ नीचे की जगह आपको ऊपर चाहिए, जस्ट पोटेंशियोमीटर मूव करो, वो वहाँ सेट हो जाएगा। दैट्स गुड, राइट? अब लेट्स से आप पोटेंशियोमीटर से खेलते बैठोगे क्या? नहीं, तुम डिफॉल्ट पोजीशन सेट कर दोगे, उसको छोड़ दो। रोबोटिक आर्म तुम कंट्रोल करोगे जॉयस्टिक से। ये 2 सेक्सी जॉयस्टिक आपको पूरे 4 एक्सेस कंट्रोल करने देती है, XY। तुम सोचो मतलब क्या लेवल है। तुम इससे ग्रिपर कंट्रोल कर सकते हो, तुम इससे रोबोटिक आर्म का Y एक्सेस कंट्रोल कर सकते हो। जो ब्लैक सर्वो मोटर यानी लोअर Y एक्सेस है, उसके लिए मैंने सिर्फ पोटेंशियोमीटर दिया है। क्योंकि अगर देखो जॉयस्टिक्स है ना, इंस्टेंट मूवमेंट्स, ऐसा धीरे धीरे नहीं जाता, टक करके जाता है। और ये मैंने जानबूझ के किया है। अगर तुम्हें धीरे कंट्रोल करना है तुम पॉट्स यूज कर लो, नो इशू। बट तुम्हें कुछ झटका देना है या फिर तुम्हें कुछ हैवी लिफ्ट करना है तो तुम धीरे धीरे करोगे तो कल्याण हो गया भाई तुम्हारा। सो यू नीड जॉयस्टिक्स ताकि एक जर्क देके चीजें उठा सके या फिर कुछ काटना है तो काट सके। दैट्स हाउ रोबोटिक आर्म वर्क्स। ये मेरा मेथोडोलॉजी या फिर कंटेक्स्ट है कि रोबोटिक आर्म का ये काम होना चाहिए। दैट्स वाई मैंने जॉयस्टिक ऐड किया और एक जर्क ऐड किया। अब रोबोटिक आर्म इतना पावरफुल है तो वो क्लिक करके उठाता है चीजें टक करके, तो इतना फास्ट और इतना स्ट्रांग है कि वो टॉर्क भी बढ़ा देता है टेक्निकली। तो हैवी ऑब्जेक्ट्स भी उठा सकता है मेरा रोबोट, मैंने बनाया है। बात करते हैं रोबोटिक आर्म के ग्रिपर की। रोबोटिक आर्म का जो ग्रिपर है दैट्स प्रीटी फकिंग अमेजिंग, क्योंकि वो मैंने ना ऑनलाइन ऑर्डर किया, ना 3D प्रिंट किया, ना कुछ किया। तुम्हारे घर में कपड़े सुखाने की जो चिमटी होती है ना, मैंने उसको डाइसेक्ट कर दिया ऐसा मस्त खोल के चाकू से, अंदर के ऑर्गन्स देखे, स्प्रिंग निकाल लिया। और मेरी साइकिल का हेडलाइट का जो होल्डर था वो बेचारा शहीद हो गया इस जंग के अंदर, तो क्यों ना वो इस्तेमाल करे। तो मैंने रोबोटिक आर्म के अंदर चिमटिया और साइकिल की हेडलाइट का ग्रिपर यूज़ किया है। बेसिकली ये एक 100% DIY रोबोटिक आर्म है जो मात्र 20 रुपये में बनाया गया है। तो प्रॉब्लम ये थी कि मैं एक फ्रीलांसर हूँ, तो मेरे पेचेक्स आते हैं बहुत लेट, तो मेरे पास पैसे नहीं थे रोबोटिक आर्म लेने के। व्हाट आई डिड वाज आई मेड अ रोबोटिक आर्म बाय माई सेल्फ एंड इट वर्क्स लाइक अ चार्म। जो भी अमेजोन के ऊपर मैंने देखा 400 रुपये का रोबोटिक आर्म, सॉरी रोबोटिक ग्रिपर, रोबोटिक आर्म तो साले 1000 रुपये का कौन देता है रोबोटिक आर्म यार। ये होममेड रोबोटिक आर्म है भाई, 100-150 रुपये का बनता है। तुम्हें सिर्फ इन्वेस्ट करना तो सर्वो मोटर में और छोटे से PVC पाइप में तुम्हारा रोबोटिक आर्म का काम हो जाता है। तो अगर तुम्हारा एक इंजीनियरिंग माइंडसेट है, तुम्हारा एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट है, तो यू कैन अकम्प्लिश एनीथिंग। ये तो मेरी एक पहली लर्निंग थी, तो वो मैंने अकम्प्लिश कर ली और वो इम्प्लीमेंट भी करी। एंड रोबोटिक आर्म ग्रिपर इज सुपर अमेजिंग। बाय द वे आई वुड लाइक टू मेंशन कि रोबोटिक आर्म जो है उसका भी आप डिफॉल्ट पोजीशन सेट कर सकते हो यूजिंग पॉट्स। तो अगर आप चाहते हो कि आपका रोबोटिक आर्म बाय डिफॉल्ट ऐसे खुला रहे तो वो भी रहेगा, एंड इफ यू वांट बाय डिफॉल्ट आपका रोबोटिक आर्म ऐसे बंद रहे तो वो भी पॉसिबिलिटी है। आप उसको बीच में भी लटका सकते हो ऐसे करके। तो रोबोटिक आर्म आपको जैसी चाहिए आप वैसी कीजिए। अब आते हैं भाई ट्रांसमीटर पे। हमारा ट्रांसमीटर बहुत बैडएस है। इसके ऊपर तुम्हें कस्टम PCB देखने मिलेगा। ये पूरा जो PCB है अगर तुम ध्यान से, वो ब्राउन कलर का है, वो तुम्हारे भाई ने पूरा अपने हाथ से बनाया, एक एक चीज सोल्डर कर करके, तो प्रॉपर ट्रैक्स बने हैं उसके। आप अगर पहले की वीडियोस देखेंगे तो उसमें मैंने बताया मैंने PCB कैसे बनाया है। इवन इसमें मैंने बहुत सारी गलतियां भी की है, तो वो भी आपको दिखने मिल जाएगी। क्लिक ऑन द आई बटन भाई, सब कुछ मिलेगा आपको। दैट्स ईशान जैन फॉर यू। एंड या अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर दो भाई, पाप लगेगा, नरक में पकौड़े बनेंगे तुम्हारे। मजाक कर रहा हूँ, आई लाइक टिक्कास। ओके, ये रिमोट बहुत सेक्सी है। दिस रिमोट हैज 4 joysticks, 3 toggle बटन, 1 सिंगल पुल सिंगल थ्रो बटन। यार क्या बताऊं मैं तुम्हें, 4 पोटेंशियोमीटर्स और इतना पूरा जो बीस्ट है। इट इज पावर्ड बाय Arduino Nano, जो कि बहुत सेक्सी है। तो मैं अगर दिख रहा होगा, दिस इज NRF24L01 रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल विच अलाउज 2 separate microcontrollers to communicate with radio frequencies. This whole beast is powered by 4 AA batteries, NIMH 1.2 volt batteries. इतना सेक्सी है ना यार, ये क्या बताऊँ मैं तुम्हें।